Okay. So, doctors, in the last lecture, we understood the overall concept of cell cycle. Is cell taking from birth to death. Complete concept we have studied as cell cycle, right? From birth to death of a cell. But from birth to death of a cell, there are so many stages. There are so many phases in the life of a cell, which is together called as cell cycle. But the major change in that cell cycle is a major part is cell division. Because if, as far as unicellular organism is concerned, cell division itself a reproduction. नई सेल तभी तो बनेगी ना जब पुरानी सेल डिवाइड होगी. तो उसका बर्थ, इसे एक सिंगल सेल का बर्थ मतलब उसका रिप्रोडक्शन, और सेल का रिप्रोडक्शन मतलब सेल का डिवीजन. तो सेल साइकिल की बहुत इंपॉर्टेंट फेज थी सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बाद भी सेल साइकिल होता है, बट सेल साइकिल में हमें जो पढ़ना है दैट इज सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन की, किसी भी सेल के डिवीजन के देयर आर 2 फेजेस. कौन कौन सी? इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज एंड एम फेज. Interphase and M phase. Interphase is resting phase, we already discussed. M phase is active phase. But as far as metabolism is concerned, most active is interphase. And as far as division is concerned, Prajak bhai, division के केस में M phase ना कि interphase. तो उसको इन जनरल बच्चों इंटरफेस जो होती है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है, G1, S एंड G2. और एम फेज को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. और उसके बाद होता है उसमें, ये तो हो गई कैरियोकाइनेसिस क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होता है. उसके बाद फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सो दैट साइटोप्लाज्म भी अलग होकर 1 से 2 सेल बन जाए. बट सेल डिवाइड क्यों होती है, सेल डिवाइड कैसे होती है, एंड हु विल डिसाइड कि किस टाइप का डिवीजन होना है, इसके लिए तीनों क्वेश्चंस के जवाब मैंने दिए. व्हाई सेल विल डिवाइड? Anyone? For growth, healing. For repair, growth. For growth, repairing, healing. For that purpose, cell will divide. When cell will divide? When NH2P ratio is disturbed. Perioplasmic index disturbed. Yes, to restore nucleocytoplasmic index or the ratio. And how it will divide will decide by Mitosis and meiosis. Will decide by location. Will decide by hormone. location and hormones. Germinal location की होगी तो meiosis करेगी. Somatic location की होगी तो वो mitosis करेगी. In that way we answered all the questions. So today we are going to start, that is simply what? Interphase. Agree? Yes sir. Yes. Heading डालते हैं interphase. Excuse me, sir. Yes, excused. बोलिए. 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 What is the question? Sir, actually, I was disconnected before asking the question. Sir, may I rejoin the meeting? Actually, I am having network issue. No problem. I am getting your voice properly, Gayatri. You may ask. Okay, fine. No problem. You can. Sir, am I audible? Yes, you are properly audible, Gayatri. Boliye. Sir, I will try to rejoin then because I cannot see your video. It is paused. Okay, no problem. Rejoin. Rejoin, no problem. Till then, please put the heading what? Interphase. Visibility is clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Point number 1. Point number 1. मैं भी लिखने की कोशिश करूंगा, आपको भी पता होना चाहिए. इसे मैंने कह दिया था इंटरमाइटोसिस, इसे मैंने कह दिया था नॉन डिवाइडिंग. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी मैंने बता दिया था. ये भी मैंने बता दिया था कि कितना %? 95%. 95%. Perfect.
चलिए मेरे साथ ही लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ G1 S and G2, G1 S and G2। तो पहला हेडिंग अपना डलेगा बच्चों व्हाट, G1 फेज। गायत्री आर यू देयर? चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज। And if you remember, आपको ये पता होगा कि जो साइकिल होता है उस साइकिल में इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, देन अगेन G1। तो मैं ये क्या इसे G1 को मैं पोस्ट माइटोटिक कह सकता हूं? यस सर। यस सर। यस सर। पोस्ट माइटोटिक। इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं यहीं लिख दूं और करके पोस्ट माइटोटिक। क्या इसे मैं पोस्ट माइटोटिक के बजाय मैं प्री सिंथेटिक कह दूं? यस सर। क्योंकि एस फेज के पहले है और माइटोसिस के बाद है। परफेक्ट। क्या मैं इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज कह दूं? यस और नो? यस सर। क्या सायन भाई मैं कह दूं पॉइंट नंबर 2 की 42% ऑफ टोटल सेल साइकिल? यस सर। टोटल सेल डिवीजन, नॉट सेल साइकिल, टोटल सेल डिवीजन। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं, और आपके मॉड्यूल में भी नहीं होंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं होंगे। वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं मेरी रेफरेंस बुक से। सर वहां पे सेल साइकिल नहीं होगा? कहां पर? 42% ऑफ टोटल सेल। नहीं, टोटल ये सेल डिवीजन वाला पार्ट है। क्योंकि कल जो डायग्राम बच्चों आपको याद होगा, तो मैंने आधे से ज्यादा तो इंटरफेस ही बनाया था, याद आया? सर फिर तो इंटरफेस में आएगा ना? क्या? G1 इंटरफेस में आएगा ना? हाँ भाई, इंटरफेस 95% हो गया, इंटरफेस 95% हो गया। इंटरफेस का जो आएगा उसका 42%, टोटल सेल डिवीजन का जितना भी ड्यूरेशन है उसका 42% तो यही ले लेगा। कौन? G1 फेज। अंडरस्टूड? सेल डिवाइड नहीं होगा? बोलो सर कल जो लेबलिंग करवाए थे उसमें लिखवाया था 42% ऑफ सेल साइकिल। 42% ऑफ सेल साइकिल लिखा था अपन ने। हाँ सर। 42% ऑफ टोटल सेल साइकिल लिखा था क्या? लेट मी चेक। फिर साइकिल ही होगा ना, क्योंकि इंटरफेस में डिवीजन कहाँ होता है? नहीं, मैं तो बच्चों बात कर रहा हूं ओवरऑल जो डिवीजन के लिए टाइम लग रहा है। अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, 42% ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन चलेगा? 42%, लेकिन बात तो वही पड़ेगी टाइम ड्यूरेशन टोटल सेल डिवीजन का। ठीक है, उसको सेल साइकिल, नो प्रॉब्लम, सेल साइकिल भी लिखा तो समस्या नहीं है। द रीजन इज, मैं उसका भी कारण बताऊं बच्चों। हम यदि इसको समझ रहे हैं, इसको टोटल हमने पकड़ा था कितना परसेंट, एम फेज कितना परसेंट था, एम फेज कितना परसेंट था? 4%। 4%। तो यदि मैं इसको 96% 1% तो अपन अलग से वो एक और कहानी बनाई थी, ये वाली एक कहानी जिसमें अपन ने कुछ भी नहीं लिखा था, ये 1% अपन ने छोड़ दिया। मतलब हम इसको मैंने कह दिया 1%, इसको मैंने कह दिया 1%, तो ये पूरा था 95%। मैं बात कर रहा हूं ये जो 95% है
इसका 42% नहीं है, वो ठीक लिखा आपने, 42% ऑफ सेल साइकिल भी लिख दिया तो कोई समस्या नहीं, और ये भी ठीक कहा आपने कि उसमें डिवीजन तो होना नहीं है, चलेगा। अग्री विथ यू? अग्रीड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Gayatri, you join? Yes, sir. What was your question? What was your Sir, not question? question. Sir, actually not question, because if I will leave the meeting, then I will be again in the waiting room, na. That's why I was informing. Okay, fine, no problem. चलिए, रेफरेंस बुक्स में कुछ लिखवा रहा हूं आपको, जीवन फेस को मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव या मेटाबॉलिकली एक्टिव, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा रहा हूं आपको जो प्रोबेबली आपको एनसीईआरटी में ना मिले। ओके Yes, sir. आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। भाई हम क्या कर रहे हैं, पहली फेज में हम ग्रोथ 1 में वो जितना भी कंटेंट डबल होना चाह रहा है। इफ आई वांट टू डिवाइड तो मेरे 2 कान के बजाय 4 कान करने पड़ेंगे, 2 नॉस्ट्रल्स और करने पड़ेंगे, 2 आईज और करनी, तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो जमा करना पड़ेगा। जब रॉ मटेरियल होगा तो वो एस फेज में सिंथेसाइज कर लेगा, 2 और 2 और 4 आंखें हो जाएंगी, 2 और 2 और कान हो जाएंगे। फिर G2 में जो नए बने हैं वो ग्रोथ करेंगे, और फिर जब सारे सब कुछ मैच्योर्ड हो जाए, ग्रो कर जाए, वो डिवाइड हो जाए, सिंपली। परफेक्ट। तो इसमें भी अपन ने सिंथेसाइज कर लिया आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, एनर्जी, न्यूक्लियोटाइड्स के बाद अमीनो एसिड्स, एनर्जी, अमीनो एसिड्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्म, सारी तैयारी हो रही है जीवन में, प्लीज नोट। नेक्स्ट पॉइंट, ये पूछा जाएगा बच्चों आप लोगों से ना, किसमें क्या क्या बनता है। ड्यूरेशन ऑफ जीवन इज वेरिएबल, जरूरत नहीं, इट इज लॉन्गर फॉर सेल डिवाइडिंग इनफ्रीक्वेंटली। ओके, पॉइंट नंबर 6, जीवन ड्यूरेशन इज वेरिएबल। क्या लगता है, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये ज्यादा बड़ी होगी कि छोटी होगी? छोटी होगी बोलो सर, छोटी होगी क्यों ऐसा लगता है? सर, क्योंकि उसको रैपिडली डिवाइड करना है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कौन बोला? ओमकार। बहुत बढ़िया। शॉर्टर इन मेरिस्टेम्स, अग्री? तो दूसरा मुझे लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, जिसको डिवाइड फास्ट होना है वो इतना लंबा ग्रोथ क्यों करेगा, फटाफट डिवाइड होता रहेगा। तो जीवन का ड्यूरेशन वेरिएबल होता है, ये नीट का सवाल हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, मेरे साथ ही नोट करते चल रहा है, नो वन विल टेक द स्क्रीनशॉट। इन जीवन फेज cell has 3 options. क्या 3 ऑप्शंस हैं वो भी बता रहा हूं, ये नीट का इंपॉर्टेंट सवाल है जो शायद ही कोई बच्चा अदर देन रेजोनेंस जान पा रहा होगा। ईदर टू कंटिन्यू सेल साइकिल, एंड एंटर इनटू एस फेज। जीवन के बाद आएगी एस, ये होता है यहां जीवन, यहां होती है एस, और यहां होती है G2। तो एक पहला ऑप्शन है कि कंटिन्यूस सेल साइकिल को करता रहे और एस में एंटर कर जाए।
दूसरा ये हो सकता है कि गेट अरेस्टेड इन G1 फेज, गेट अरेस्टेड इन G1। ये भी बताता हूं कैसे होता है, कहां होता है। most of the people, not most of the people I should say, in females what usually happens, what happens exactly during their menstrual cycle, when they form an ova, when they form an ova, this ova never ever matures, and during the menstrual cycle, during that bleeding, that ova also released, but immature ova। तो क्या हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवा निकलता है वो इमेच्योर होता है? जी हाँ, क्योंकि ओवा मैच्योर ही तब होता है जब स्पर्म उसे पेनिट्रेट कर देता है, यानी स्पर्म के पेनिट्रेशन के बाद ही कोई ओवा फाइनल स्टेज तक पहुंचता है और एक रुका हुआ डिवीजन पूरा करता है। अदरवाइज एक डिवीजन को कंप्लीट किए बगैर इनकम्प्लीट डिवीजन की स्टेट में ओवा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। Although ओवा का बाहर निकालना इज नॉट मेंस्ट्रुएशन, एंडोमेट्रियम की थिनिंग होना, एंडोमेट्रियम का निकल जाना, एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होना इज एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक अलग बात है कि उसके साथ ओवा हो या ना हो, मेंस्ट्रुएशन तो होता ही रहे। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुएशन व्हाटएवर द ओवा रिलीज, इट इज इमेच्योर्ड ओवा and it has not completed the final division. Perfect. तो ऐसी कंडीशंस में सेल अरेस्ट हो जाती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में सेल अरेस्ट हो जाती है, and this arresting of cell occurs at a G1 phase, so that when the cell is arrested in G1 phase, that means either energy is not sufficient, so it is not enough potential, it is not having enough energy to enter into next S phase. So either it will enter into G1 if energy is sufficient, if not, then it will be stuck into G1 itself. Understood, doctors? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, then third option. आ रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन पर भी आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। Sir, after getting arrested in G1 phase, if it gets enough energy, then can it continue the cell cycle? Yes, Prajakta, perfect question you asked. That's why I was perfect. Very nice, Prajakta. इसीलिए थर्ड कंडीशन पर मैं आ रहा था भाई। If energy is sufficient, it should enter into what? S phase. If not sufficient, then it will arrested for a while. But if re-energized, then again restart into G1. But if not, लग रहा है थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी इवन दो कि भाई मैं एंटर नहीं कर सकती, I don't have any enough energy, so I should what? Exit from cell cycle, exit cycle, and enter into G0 phase. And that G0 phase, frequently asked question in NEET, this G0 phase is known as quiescent state. Quiescent state. Perfect. Please note, this is the quiescent state. Please note. Hello. हाँ जी बोले। मी क्लास मध्ये आहे, 7:30 नंतर बोलतो। अंडरस्टूड डॉक्टर्स? क्या कहा मैंने आपसे कि जब जीवन में सेल पड़ी हो तो उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। देखिए कितना सिमिलर है ना ये जीवन और अपना जीवन, कितना सिमिलर थे। यू हैव 3 ऑप्शंस। Whatever the struggles, continue with the cell cycle, enter into the next phase, or wait for a while, take a pause. Should I wait? If I will re-energize, then I'll enter, or I should exit and quit. कि मुझे स्ट्रगल करना ही नहीं, मुझे एग्जिट हो जाना। Which option is better, doctors? A. Option A. Continue with the cell cycle. The struggle के साथ कंटिन्यू करना है। Whether it is online, offline, हम लोग घबराने वाले नहीं, हमें कंटिन्यू करना है विद दिस साइकिल। यही लाइफ साइकिल है, यही जीवन। एग्जिट कर लेने के बाद तो आप खत्म हो जाए। एनीवेज, कम टू द पॉइंट दैट
continue with the cell cycle, get arrested in G1. If not, energy is sufficient. Then exit the cell cycle if not at all energy is regained. Agree, doctors? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर पॉइंट में लिख देता हूं, द डिटरमाइनिंग फैक्टर. मुक्ति भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके सर. हाँ बोलिए, कौन बोला? ओमकार सर. सर ये कितना सर वेट करेगा एनर्जी सफिशिएंट होने के लिए, मतलब एग्जिट करने के लिए? डिपेंड करता है ना दोस्त की किस लोकेशन का है. डिपेंड करता है किस लोकेशन का है. जहां पर ब्लड वेसल्स बहुत एबंडेंट है. ओमकार, कभी आपने फील किया कि एक चोट जो घुटने पे लगी है और एक चोट जो चेहरे पे लगी है, कौन सी जल्दी हीलिंग कर लेता है? घुटने वाली. जोर से. घुटने पर. नहीं डॉक्टर, वो तो हील ही नहीं होता. जस्ट इमेजिन कि यहां पर कोई पिंपल आया हो, ब्लड तो यहां भी निकला है, घाव यहां कितना भी बड़ा हो, सिंस दिस फेशियल स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय अबंडेंट ब्लड वेसल्स, जरा कट लग जाए शेविंग करते करते तो ब्लड निकला. इतनी अबंडेंट ब्लड सप्लाई. और जहां पर अबंडेंट ब्लड सप्लाई होगा, ओमकार अच्छा सवाल पूछा, जहां अबंडेंट ब्लड सप्लाई होगा वहां हीलिंग जल्दी होगी या जहां नहीं है वहां जल्दी होगी? जहाँ ज्यादा होगा. ज्यादा है तो डिपेंड करता है कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सेल की लोकेशन कहां पर. अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छे सवाल आ रहे हैं, वेरी नाइस. आप इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात. चलिए, मैंने कहा यस, द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स आर एनर्जी एंड मीटोजेंस या माइटोजेंस. बताए थे मैंने माइटोजेंस. डॉक्टर पैठणे. Yes, sir. Yes, mitogen. Now we are knowing this mitogens. Is it? Yes, sir. जो माइटोसिस को प्रमोट करे वो माइटोजेंस. और डॉक्टर पैठणे, Yes, sir. अपने को बायोमोलिक्यूल के ऑरा से बाहर निकलना पड़ेगा. एक चैप्टर के ऑरा से बाहर निकलेंगे तब दूसरा ऑरा अपने समझ में आएगा. पहला ऑरा ये कहता है कि बायोमोलिक्यूल में हमने एंजाइम पढ़ा, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. भैया यहाँ पर भी इनहिबिटर है. इनहिबिटर तो हर जगह पर आते हैं, हर बार वो एंजाइमेटिक इनहिबिटर्स तो नहीं हो सकते ना दोस्त. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके परफेक्ट. चलिए कोई बात. यस गायत्री बोलिए. Sir, we can say that the number of G0 cells will vary as per the part of the body. Like for example, a skin is the part which will get injured very frequently, should have more G0 cells. No. G0 is not cell, my dear. G0 is not cell, my dear. Let me very clear one more example. गायत्री, G0 में वो सेल जाएगी जिससे अब डिवाइड ही नहीं होना है. Do you know we have two muscles that never ever divide? Nerve cell. Yes. Yes, sir. नर्व सेल अपनी बॉडी का न्यूरॉन एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के बाद तुरंत G0 में चला जाता है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, आपकी और मेरी बॉडी के न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होते. एक बार जो पैदा होते समय न्यूरॉन्स बन गए थे, बस उसके बाद न्यूरॉन फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये परमानेंट G0 में चले जाते हैं. मसल सेल्स ये परमानेंट G0 में चली जाती हैं, ये फिर से डिवाइड नहीं होती दोस्तों. तो हर वो सेल जिसे लग रहा है कि एनर्जी उसे सफिशिएंट नहीं मिलेगी या उसके पास एनर्जी स्टोर इतना नहीं है, वो परमानेंट G0 में चली जाती है और एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल. तो G0 कोई सेल नहीं है. G0 सेल साइकिल की एक ऐसी स्टेट है जहां एंटर करने के बाद सेल फिर डिवाइड नहीं हो सकती. तो क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज वो जीवन से बाद में G0 में आई है. भाई यहां जीवन था, उसको थोड़ी देर वेट किया, अदरवाइज वो वापस G0 में चली गई. जो वापस G0 में चली गई होगी, इट विल नेवर एवर कम अगेन इनटू द साइकिल. वो सेल फिर डिवाइड नहीं होगी. सो ओनली दोज लोकेशंस वेयर सेल्स बिकम्स डेड and no more enters into any cycle. This phase is what? G0. Dr. Rahalkar. Sir, why can't it again divide? Understood? Yes, sir. Perfect. Okay.
Next is what? Therefore, point number 9. Therefore, the checkpoints, बताया था, checkpoints are at G1 phase. 2 checkpoints बताए थे, कौन से? CDK and CM. CG1 and CM. CG1, that is growth 1 का cycline, and CM is what? Mitotic cycline. और दोनों ही एंजाइम क्या थे? Cycline dependent kinase. Spandan, am I right? Yes, sir. Which is known as CDK, cycline dependent kinase. So first checkpoint will be at CG1. Yes, it should be. भाई यदि एनर्जी है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, और बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली तो एग्जिट कर जाओ. तो तुम CG1 पे चेक पॉइंट हो गया. उसके बाद C1, CM, भाई ठीक है, आप सफिशिएंटली आ गए, लेकिन यहां पहुंचने के बाद फिर एक बार चेक कर लो, क्या आप इतनी एनर्जी रखे हो कि आप डिवाइड हो सकते हो? नहीं तो फिर वहीं वेट कर जाओ, नहीं तो प्रोफेस में अरेस्ट हो जाओ. गॉट माय पॉइंट? भाई ये ऑप्शन तो कहीं पर भी मिल सकता है, गेट अरेस्टेड इन G1 या गेट अरेस्टेड इन पर्टिकुलर दैट फेज. जहां से आगे आपको एनर्जी लग रही है कि नहीं मिल पा रही, वहीं अरेस्ट हो जाओ. वो चाहे प्रोफेज हो, चाहे मेटाफेज हो, चाहे एनाफेज हो, चाहे टीलोफेज, वहीं के वहीं अरेस्ट हो जाओ. थोड़ी देर रुक जाओ, एनर्जी आ जाए तो डिवाइड कर जाओ. तो ये तो सभी समय अवेलेबल है. हाँ, ये जरूर है, यदि आप कंटिन्यू कर गए दैट मींस यू हैव सफिशिएंट एनर्जी, और यदि आप एग्जिट कर गए, G0 में आ गए, तो दैट मींस यू डोंट हैव इनसफिशिएंट एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टूड. Doctors, understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब इसमें मुझे लिखाना चाहिए. गार्गी पाठक पूछ रही है, if one cell gets arrested in G1, then other cell can enter G1. Okay. गार्गी, आपका सवाल है कि यदि एक सेल G1 से जाकर G0 में एंटर कर गई, वापस आ गई, तो क्या दूसरी सेल G1 में एंटर कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. ये डिपेंड करता है कि यदि कोई सेल जेनेटिकली एबनॉर्मल हो गई होगी, माल फंक्शन कर रही होगी, तो वो अरेस्ट हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी. बट उस समय एट ए टाइम दूसरी सेल तो आगे बढ़ ही सकती. हर सेल का अपना साइकिल होता है. डॉक्टर पाठक, अग्री? Yes, sir. ठीक. सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज इन नंबर. Cell organelles increase in numbers. ये तो हो गया बच्चों पूरा G1 फेज. देखो जरा समझ में आया क्या G1 फेज? Excuse me, sir. Yes, excuse. Sir, so can we say that there are some creams which are specifically given for quick healing of wounds? So can we say that the cream will contain mitogen? Not getting your question. Repeat. So there are some creams which are given for quick healing of wounds when the wound is very large, like accident or something like that. Then can we say that the creams will contain mitogens? Yes, perfect. Those cream, those ointments, those chemicals, those drugs are definitely support your healing, and they support the cell division growth. And the best drug and the best chemical is what? Vitamin C. That heal very fast. So vitamin C is the best mitogen. Yes, perfectly going, Gayatri. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, can you please explain again the checkpoints of G1 phase? CG1 and CM. Cyclic G1, cyclic mitotic. Cyclic G1, G1 के दौरान आएगा यहाँ पर, और माइटोटिक साइक्लिन यहाँ पर आएगा. CG1 जब इंटरफेज में एंटर कर रहे हैं, और CM जब एम फेज में एंटर कर रहे हैं. यानी बोथ द एंट्री पॉइंट्स. कौन पूछा? प्राजक. डिड यू आस्क द क्वेश्चन? Yes, sir. प्राजक, जब अभी आप नासिक आए थे, आप कहां से आए थे? मालेगांव. तो मालेगांव से कोई आपको नाका लगा था क्या? बैरिकेड लगे थे? चेक पोस्ट लगी थी? Yes, sir. ओके. वो चेक पोस्ट थी या तो मालेगांव छोड़ने की होगी या नासिक में एंट्री की होगी. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. परफेक्ट. मतलब नासिक में एंट्री के पहले चेक कर लो क्या आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आप आगे जाइए.
नहीं तो वहां रुक जाइए, घर से वैलिड डॉक्यूमेंट बुलवाइए, और नहीं तो वापस लौट जाइए। प्राजक्त अग्री? Yes, yes, sir. Agree, sir. परफेक्ट। चलिए, शुड आई गो फॉर एस फेज? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट वेट, मैं और चेक कर लूं रेफरेंस बुक में कुछ जीवन में और कुछ, यदि मुझे जीवन बताना हो आपको। जीवन ही जीवन तो बता रहा हूं जब से यार, क्या ही बता रहा हूं। हाँ, एक पॉइंट बड़ा अच्छा मुझे मिला, एक पॉइंट बड़ा अच्छा मिला। साइज ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस बिकम्स डबल्ड इन जीवन, सेल वन इंक्रीज इन नंबर। और नोट करके लिखवा दूं मैं, नोट करके लिखवा दूं बच्चों, साइज ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस, साइज ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस increased and once a cell crossed checkpoints, ध्यान से समझना, once the cell crossed checkpoints, then cell divides for sure, even in unfavorable condition. Even in unfavorable conditions। भाई अब अनफेवरेबल वो लिखने को तो लिख दिया, अनफेवरेबल आएगा ही क्यों? यदि जीवन ने चेक कर लिया है, नाके से पास हो गया, बैरियर को क्रॉस कर लिया आपने, तो फिर आएगा क्यों? तो वो अब तो डिवाइड होनी ही होनी है। यदि आपने माइटोटिक साइक्लिन को क्रॉस कर लिया तो सेल 100% डिवाइड हो। अंडरस्टूड डॉक्टर्स? यस सर। परफेक्ट। जस्ट आई एम शेयरिंग एन इमेज। and then we'll start for G2. Okay. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। All points are clear? Excuse me, sir. Yes, बोलिए। Sir, as you told that after passing the checkpoints, cell will surely divide, but you told that they can get arrested in prophase also. अरे भाई, मैं सारे चेक पॉइंट्स बोल रहा हूं बेटा। भाई यहां से चेक पॉइंट से डिवाइड होगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने सीएम का चेक पॉइंट आपसे कहा, वंस सीएम से चेक पॉइंट क्लियर हो गया, अब कैसा भी होगा डॉक्टर सानी का, तो रुक भले जाएगी लेकिन डिवाइड तो होगी ना आज नहीं कल। गॉट माय पॉइंट? मतलब भाई सेल साइकिल में एग्जिट होने का एक ही रास्ता है और वह है G0। यदि वो CG1 को क्रॉस कर गया तो सवाल ही नहीं कि वो वापस G0 में जाएगा। हाँ, अब यदि वो माइटोटिक साइक्लिन को भी क्रॉस कर गया, हो सकता है प्रोफेज में अरेस्ट हो जाए, हो सकता है मेटाफेज में अरेस्ट हो जाए। आज अरेस्ट होगा, कल अरेस्ट होगा, 6 महीने अरेस्ट होगा, बट डिवाइड तो होकर ही रहेगी सर। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। अब बात करते हैं कौन सी फेज? एस फेज। बच्चों ये चैप्टर समझ में आना बहुत जरूरी है, इसलिए बिल्कुल भी लूप होल मत छोड़िएगा। नहीं समझ में आया तो बार बार पूछिएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और न जाने कौन कौन से चैप्टर्स सब इसी पर बेस्ड आने वाले हैं। चलिए, विच फेज? सेकंड फेज इज व्हाट? S phase. एस फेज।
also known as Synthesis phase. synthesis phase. Point number 2, synthesis होता है बेसिकली किसका? Characterized by DNA replication. DNA replication. इसीलिए एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है डीएनए कंटेंट डबल्स. DNA contained doubles. That means 2C to 4C. But not the chromosomes. Not the chromosomes. यहां जो डबल हो रहा है बच्चों, यही सवाल नीट का सवाल है कि जब सिंथेसिस हो रहा हो तो डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नहीं. अब जब मैडम ने क्रोमोसोम पढ़ाया होगा तब बताया हो या न बताया हो, हम एक चीज बड़ी क्लियर समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. ये पॉइंट एक नहीं 1000 दफे आपसे पूछा जाएगा. पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड 2C? व्हाई नॉट C to 2C? व्हाई इट इज 2C to 4C? एनीवन? Because chromosomes Because are of sister present in chromatids. pair. they are present in pairs. वेरी नाइस. मतलब भावना ने बहुत ही बड़ी आपको इस बात में प्रिपेयर किया है. You know that chromosome has 2 chromatids. Understood? Yes, sir. यानी मैं एक कदम और आगे बताऊं, क्रोमोसोम जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं दोस्तों. क्रोमोसोम जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती. क्रोमा मीन्स कलर, जोमा मीन्स थ्रेड. एक पतला सा धागा जो कभी दिखता ही नहीं है, उसे कहते हैं आप क्रोमेटीन. बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट कंडेंस्ड. व्हाई इट कंडेंस्ड? इट हैज टू बी कंडेंस्ड यार. क्यों भाई? मैंने जो शर्ट पहना हुआ है ये है मेरा न्यूक्लियस का कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट. व्हेन इट एंटर्स इनटू इंटरफेस, G1 phase, the content will be double. S phase, the DNA will be doubled. G2 phase, the doubled material will grow. भाई इतना तो हो ही जाएगा कि ये शर्ट फटने लगेगा. क्यों? क्योंकि अंदर से साइज बढ़ता जाएगा. अंदर से जब साइज बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली जब तक सेल डिवाइड नहीं हुई है, कोशिश यही होगी कि वो क्रोमोसोम जिसका कंटेंट, डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, वो कॉम्पैक्ट हो जाए, कंडेंस्ड हो जाए. नहीं तो अकोमोडेट कैसे करेंगे भाई? एक ऐसा थ्रेड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक ऐसा थ्रेड, डोंट laugh on the statement, and don't surprise even. You may be surprised definitely. The chromosome, DNA thread is such a long polymer thread, that you can travel Earth to Moon 6 rounds. ह्यूमन डीएनए को निकालोगे बच्चों तो ह्यूमन डीएनए इतना लंबा थ्रेड है कि अर्थ टू मून 6 राउंड्स लगा सकते हैं आप. कैन यू इमेजिन? इतना लंबा धागा आपकी बॉडी के सेल में महज कुछ नैनोमीटर डायमीटर के न्यूक्लियस में कितना कंडेंस पड़ा होगा. एंड इट बिकम्स मोर कंडेंस्ड व्हेन सेल अंडरगोज डिवीजन, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट इंक्रीजिंग. मैं एक का एक ही हूं, लेकिन मेरा कंटेंट डबल हो गया. अब जब मेरा कंटेंट डबल हो गया तो मैं इस शर्ट में तो डेफिनेटली नहीं अकोमोडेट हो सकता. इसे रप्चर होना ही पड़ेगा. 1 से 2 शर्ट बनाने ही पड़ेंगे, तब 2 इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर पाएंगे. तो इतना कॉम्पैक्ट, इतना कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जब किसी धागे का दिखता है तो वो दिखने वाली बॉडी, दैट इज क्रोमोसोम, जिसको मैं अनरैप करूं, एक क्रोमोसोम को मैं अनरैप करूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, one chromosome, when I unwrap, what I will found? 2 chromatids. 2 chromatids. When I'll go for this 4 chromonimata. When I will more unwind it, जैसे जैसे मैं और खोलता जाऊंगा उसको, मुझे इस क्रोमोनिमेटा के बाद मिलेगा क्रोमेटिन थ्रेड. क्या करता है रे खड़े रह के उधर? देखता हूँ उधर क्या करूँगा. स्वराज नेरीकर, क्या कर रहे हो स्वराज? क्यों अनम्यूट कर लिया? सॉरी सर.
नॉनसेंस क्रिएट नहीं करो बच्चों यार। ओके, सो वो क्रोमेटीन मटेरियल, उसको मैं यदि और देखूं बच्चों तो उस पर मुझे दिखते हैं जीन्स। यार जीन को और अनरैप किया तो आई फाउंड नथिंग अदर देन द डीएनए। मुक्तीत कह रहे हैं सर कंटेंट यानी विल द लेंथ इंक्रीज? नो नो नो, सी कंटेंट का मतलब क्या है भाई? मैंने यदि कहा कि ऐसे डीएनए, अब उल्टा चलता हूं मुक्ति, थोड़ी देर में समझ में आएगा। डीएनए विल कंप्रेस्ड, will form genes, will form chromatin, will form chromatinata, will form chromatin, will form chromosome। उसको अनरैप करता गया तो मुझे डीएनए मिला, उसको कंडेंस करता गया तो मुझे क्रोमोसोम मिल गया। मतलब क्रोमोसोम और डीएनए कोई बहुत अलग पार्ट नहीं है, कोई बहुत अलग पार्ट नहीं है। बट जो दिखने वाली बॉडी है, जो कंडेंसेशन की वजह से इतनी जाड़ी हो जाती है, इतनी थिक हो जाती है, वो दिखने लगती है। जो दिखने लगता है वो कौन? क्रोमोसोम। उसके अंदर जो नहीं दिख रहा है वो स्ट्रक्चर कौन? डीएनए। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. डॉक्टर एमजे, डॉक्टर आयुष घुमरे, Yes, sir. डॉक्टर ओमकार, ऐसे समझिए, है ना, फनी वे में थोड़ा सा। डॉक्टर एमजे, मंगलसूत्र बघितलंय का आपण? हो सर. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इस्तेमाल करने के लिए बहुत टाइम है भी दोस्त, है ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो जो मंगलसूत्र होता है अपना, या कोई माला, मोतियों की कोई माला, वो माला का एक धागा, कैन यू इमेजिन? मोतियों की माला आप इमेजिन कर सकते हैं? Yes, sir. परफेक्ट। उसके जो मोती हैं, जो बीड्स हैं, जो मोती हैं, वो जीन्स हैं। लेकिन वो जिस धागे में पिरोए गए हैं, वो बैकबोन जो नहीं दिख रहा है, वो क्रोमेटिन थ्रेड है। अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। वो जो मोती के दाने हैं, वो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने क्या किया, उन बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को डबल कर दिया। मैंने थ्रेड को डबल नहीं किया, मैंने बीड को डबल कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. भाई सभी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, अदिति परदेशी, अर्निता, अंकुर, अंजलि, गीतेश, इशिता गाड़े, अंडरस्टूड बेटा? यस सर। कुंजल मंत्री? यस सर। डॉक्टर भंडारी? यस सर। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ठीक वैसे ही मोतियों की माला की बात कर रहा हूं, बीडेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जिसमें एस फेज में, बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, जिसमें एस फेज में मैंने थ्रेड नहीं बढ़ाए, मैंने उनका कंटेंट यानी उसके बीड्स बढ़ा दिए, मोतियों की संख्या बढ़ा दी, मैंने धागों की संख्या नहीं बढ़ाई। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। और मुझे पता है कि ऑलरेडी मुझे उसे 2C ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि always genes are present in pairs. DNA is double stranded. Genes are found in pairs, and chromosome itself has sister chromatids. डॉक्टर्स अजीत, अदिति, समझ में आया बच्चों? यस सर। परफेक्ट। इसीलिए मैंने इनिशियली उसको 2C कंटेंट लिखा। अब वो 2C कंटेंट ऑलरेडी 4C हो चुका। जो क्रोमेटिन थ्रेड अभी तक नहीं दिख रहे थे, अब वो दिखने लगे। जो अभी तक नहीं दिख रहे थे, एस फेज के बाद दिखने लगे। क्यों दिखने लगे उसकी भी बात मैं करता हूं। सिंपल सा स्टेटमेंट एक बात करता हूं। कुछ दिख रहा है बच्चों आपको अभी? हाँ सर. यस सर। यस सर। बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा हो, बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, एम आई राइट? नो सर. नहीं सर, दिख रहा है. No, sir. बहुत बहुत लाइट, बहुत डल दिख रहा है, एम आई राइट? यस सर। Yes, अब sir. देखिए मैं इसको करता हूं डबल। अब कुछ बेटर दिखा? Yes, sir. यस सर. यस। अब मैंने इसे कर दिया डबल और ट्रिपल और न जाने क्या क्या, और जब मैंने इसको डबल और ट्रिपल कर दिया
So what I found, like this structure which can easily be visible. Agree? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. When it was thin and cell was not under any division pressure, वो डिवाइड नहीं हो रही थी, वो रेस्टिंग स्टेट में पड़ी थी, वो नॉर्मल क्रोमेटिन थ्रेड पड़े हुए थे. As soon as it activate by a mitogen कि तुम्हें डिवाइड होना है, उसने तुरंत पहला काम किया G1 कि मुझे अपनी ग्रोथ करने दो. मुझे डिवाइड होना है क्या? मुझे ग्रोथ करने दो, मुझे ऑर्गेनेल्स बनाने दो, मुझे प्रोटीन लगेगा, मुझे एनर्जी लगेगा. फाइन, नो प्रॉब्लम. ठीक. बोले अब मुझे एस फेज में जाने दो. बोले ठीक, क्या करोगे एस फेज में? तो बोले मैं अपना कंटेंट डबल कर लेती. जब मुझे सेपरेट होके दो में तरह एग्जिस्ट करना है, तो मेरा कंटेंट तो डबल कर लूं, जो एक है उसको दो तो कर लूं, तब तो मैं डिवाइड होऊंगा ना. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. But Yes, sir. again, Yes, sir. before switching to the next point, again I am telling you, in S phase, DNA contain doubles, not the chromosomes. If chromosome number are 46 in a cell, that will remain 46. If number of chromosomes are 46 in a cell, even after S phase, it will 46, but this 46 will be like this, like this, like this. Understood? Yes, sir. Understood? Yes. Yes, sir. That means if I draw a chromosome with two chromatids and the chromosomes are found in pairs, after S phase, that will remain same. But what will happen? Understood? Yes, sir. Understood? Yes, sir. भैया Yes, ये sir. तो मतलब क्रोमोसोम तो दिख ही नहीं रहा था जब सेल डिवाइड नहीं हो रही थी, तो मैंने तो ये भी बहुत ज्यादा बना दिया. जब क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहा था, तो ये तो बस ऐसे थ्रेड की तरह पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था उसमें. बट जब उसने कंटेंट डबल कर लिया, तो अपने जीन्स के नंबर बढ़ा लिए और वो कुछ इस तरह से. अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट. तो मैंने डीएनए कंटेन डबल्स. परफेक्ट. चलिए, और इसमें क्या लिखना चाहिए? ओके, वन मोर पॉइंट. One chromosome clearly appears as two chromatids. Like this is and this is. और आपको पता होना चाहिए, this one is sister chromatid of this one and this one is sister chromatid of this one. Agree? Are you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sister chromatids. बात को बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से लेके चल रहा हूं मैं सिर्फ आपको ये बताया. एस फेज में बार बार चीख के कह रहा हूं, डीएनए डबल्स नॉट द क्रोमोसोम. इफ क्रोमोसोम्स आर 46 will remain even after 46, but they will be comparatively thicker क्योंकि कंटेंट डबल हो गया है. नेक्स्ट पॉइंट. ये पॉइंट क्या कहलाता है? दिस सेंटर पॉइंट, एनीवन? Centromere. Centriole. अरे सेंट्रोमियर, नॉट सेंट्रियोल. सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल नहीं होता बच्चों, सेंट्रोमियर. ठीक है. चलिए, और एक सेंट्रोमियर लेकिन दोनों साइड पर क्या बन जाता है? Kinetochore. बहुत बढ़िया. दिस इज नोन एज काइनेटोकोर. तो मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं, नीट का स्टेटमेंट दे देता हूं. एट एस फेज वन क्रोमोसोम, two chromatids, one centromere, two kinetochore. चलेगा क्या? Yes, sir.
Yes, sir. Perfect. और यही तो नीट का सवाल है. At S phase, one chromosome, two chromatid, one centromere, and two kinetochore. Understood, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Perfect. Yeah. Perfect. चलिए, अब आते हैं कौन सी फेज पर? थर्ड फेज इज व्हाट? G2 phase. G2 phase. G2 फेज. चलिए, G2 फेज. तो इसको सेकंड ग्रोथ फेज कह दूं? हाँ या ना? Yes, sir. तो शायद इसको मैं प्री माइटोटिक गैप फेज कह दूं? Yes, sir. क्योंकि भाई एम फेज के पहले हो रही है ना, तो ये प्री, और जो जीवन थी वो बाद में हुई थी, तो वो पोस्ट. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. ओके. पॉइंट नंबर 2. RNA and protein formation continues. RNA and protein formation continues. और last point, third point, second checkpoint, that is CM, mitotic cycline, lies between G2 and M phase. G2 and M phase. Understood, doctors? Yes, sir. चलिए, इमेज में शेयर करता हूं आपसे. और आगे बढ़ते हैं डिवीजन वाली फेज पर, यानी एम फेज. नोटेड? Yes, sir. कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट लिखना है, समझना है, और जो ना है मुझे अभी पूछना है. तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं. अभी नोट कीजिए, एक एक पॉइंट समझिए, नोट कीजिए. जो नहीं बने अनम्यूट करके बोलिए, सर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, जो भी नहीं पढ़ा. सिर्फ छापना नहीं है, मैं पूछूंगा रैंडमली.
Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज, बोलिए. Sir, in G1 phase, we have written 10th point that cell organelles increase in number, but here third point is written as cell organelles do not increase in number. नंबर नहीं बेटा, सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीजेस साइज लिखा कि नंबर लिखा? जीवन में हमने क्या लिखा? नंबर. Number. नंबर लिखा क्या? हाँ सर. इंक्रीज इन नंबर दोनों में लिखा है. अच्छा, इसमें लिखा डू नॉट इंक्रीज इन नंबर, इसमें लिखा इंक्रीज इन नंबर. एक्सेप्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? जीवन में बहुत ग्रोथ तो नहीं करता. ठीक है, क्या करेक्शन मैं इसको करवाऊं? हमने लिखा है उसमें सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज इन नंबर्स, ऐसा लिखा है हमने. हाँ सर. Yes, sir. तो डू नॉट मत करो, डू नॉट मत करो. सेल ऑर्गेनल इंक्रीज इज कंपैरेटिवली लेस, ऐसा लिखो थर्ड पॉइंट. ओके ओके. यस सर. नोटेड डॉक्टर्स? 2 Noting, minutes, sir. sir. I hope noted. Praja, Yes, sir. I am noting. Noted, sir. परफेक्ट. अब इस पूरे की समरी, कोई खास पॉइंट्स नहीं थे इसमें. एक इंपॉर्टेंट समरी यदि मैं आपको दूं तो इसको चेक कीजिए, और सिर्फ चेक ही मत कीजिए. आई विल सजेस्ट कि इसको बना लीजिए मेरे सामने, सो दैट तुरंत का छोटा शॉर्ट में बच्चों यही लिख दिया गया है. प्लीज प्रिपेयर दिस, प्लीज प्रिपेयर दिस. और G0 को लिखा है आफ्टर एग्जिट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. भाई डेफिनेटली ग्रोथ कर जाएगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी. बार बार डिवाइड थोड़ी हो रही है, क्योंकि एग्जिट हो गई है. तो उसे जो फंक्शन के लिए अचीव करना था वो उसने अचीव कर लिया, वो डिफरेंशिएट हो गई. दैट्स इट. प्लीज नोट दिस साइकिल.
सर हाँ सर सिंथेसिस फेज में उधर रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दिया है, वहां पे डीएनए लिखे क्या? डीएनए डुप्लीकेशन, हिस्टोन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड न्यूक्लियस रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम के बजाय अपन ने लिखना चाहिए रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट? डीएनए। बिल्कुल ठीक कहा सायन, बिल्कुल ठीक। ओके सर। Noted, doctors? Noted, sir. Yes, sir. Noted. चलिए, I hope everyone noted. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shita, Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is differentiation of cell? ये भी ठीक पूछा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ठीक पूछा बच्चे, बहुत जरूरी था। मुझे लग रहा था कि मैं इस वर्ड को और एक्सप्लेन करूं क्या, तो प्राजक्त ने पूछ ही लिया, सो आई शुड एक्सप्लेन। बहुत ही अच्छा जरूरी शब्द था, मतलब मैं बार बार सोच रहा था शुड आई, और एक इंडक्शन फोर्स मुझे मिल गया प्रोजेक्ट के तौर। वेरी गुड प्रोजेक्ट। बच्चों क्या होता है, दो टाइप के टिश्यूज आपने पढ़े, एक होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। Project, do you know the difference between meristematic tissue and permanent tissue? Anyone? No, sir. Anyone? Yes, sir. सर बताइए। नॉट डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड। नहीं, what is differentiation के लिए तो कहानी चल रही है दोस्त, पूरी कहानी। Sir, तो maturation of meristematic tissues. ऐसे समझते हैं। गायत्री बताइए क्या कह रही है, बोलिए। So meristematic tissues are those which don't have any specialization for any function. They will just keep dividing. But permanent tissues are those which has been specialized. Like parenchyma is formed from meristematic tissue. It will be specialized for storing food or something like that. Sclerenchyma will be for support. Okay. चलिए, ऐसे समझते हैं उसको। बिल्कुल ठीक कहा गायत्री ने, बहुत बढ़िया से बताया। मैं और बेटर एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों दो टाइप के टिश्यू, एक वो है जो डिवीजन ही डिवीजन करता जा रहा है, कीप ऑन डिवाइडिंग प्रोजेक्ट। एक ऐसी सेल है दैट कीप ऑन डिवाइडिंग, और एक ऐसी सेल है नो डिवीजन एट ऑल, नॉट डिवाइडिंग, या आई शुड से स्टॉप डिवाइडिंग। एक ऐसी सेल है जो कीप ऑन डिवाइडिंग, एक ऐसी सेल है जो स्टॉप डिवाइडिंग। तो जो कीप ऑन डिवाइडिंग है, दैट वन इज व्हाट? Meristematic. Meristematic. And that stop division, that is what? Permanent. Permanent, sir. भाई लेकिन अब अपने में कौन सी मैरिस्मेटिक होगी यार? ये तो प्लांट के केस की बात होगी, मैरिस्मेटिक और परमानेंट। हम में तो कोई मैरिस्मेटिक होता नहीं, लेकिन जब हम मदर के वॉर्म में थे, प्लीज बी ऑन म्यूट, हम लोग जब मदर के वॉर्म में थे, सिंगल सेल थे, सिंगल सेल डिवाइड होती जा रही थी, लेकिन कोई भी सेल बनने वाली, कोई भी सेल सीधे फंक्शन अचीव नहीं कर रही थी, वो भी डिवीजन ही कर रही थी, वो भी कंटिन्यूअस डिवीजन ही करती जा रही थी, which is keep on dividing। लेकिन 2 महीने के गेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड में, 2 महीने में वो एम्ब्रियो जिसने नॉस्ट्रल्स बना लिए होंगे, अब वो सेल डिवीजन रुक गया दोस्त, अब उसका स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। अब वो सेल कभी किडनी का सेल नहीं बना सकती, ये सेल कभी लीवर का सेल नहीं बना सकती, या ये सेल कभी आईज नहीं बना सकती, बिकॉज दे डिफरेंशिएट, दे मैच्योर,
द स्टॉप डिवीजन। बट जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, स्पर्म और ओवम मिला था, पहला जाइगोट बना था, वो जाइगोट ह्यूमन के केस में कैसा टिश्यू था प्राजक्त? मेरिस्टेमेटिक। बिकॉज इट वॉज कीप ऑन डिवाइडिंग, इट वॉज कीप ऑन डिवाइडिंग। वो अभी स्पेसिफिक फंक्शन उसका कुछ है ही नहीं, वो डिवाइड ही होता जाएगा, लाइक अ सीड, लाइक अ सीड। भाई सीड में इतनी सेल्स हैं जिससे फ्रूट भी बनेगा, जिससे रूट भी बनेगी, जिससे शूट भी बनेगा, जिससे लीव्स भी बनेगी, एंड व्हाट नॉट, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक है, इट इज कीप ऑन डिवाइडिंग, कीप ऑन डिवाइडिंग। लेकिन एक बार लीफ बन गई, क्या लीफ की सेल्स रूट्स बनाएंगी क्या कभी? नो सर। नो, बिकॉज वो लीफ की सेल डिफरेंशिएट हो गई, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन अचीव कर, हायर कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया कि तुम्हें फोटोसिंथेसिस करना है, तुम्हें ट्रांसपिरेशन करना है, तुम्हें फूड बनाना है, तुम्हें रूट की तरह सपोर्ट नहीं देना है। तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्टॉप डिवीजन, सेम टाइम एंड हायर्ड अ स्पेसिफिक function. Understood, doctors? यस सर। Understood? Yes, बच्चों sir. आज घड़ी मत देखिएगा, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं No, सर, sir. मजा आ रहा है सर। No, sir. आज ये है कि स्वप्निल सर की क्लासेस कुछ ज्यादा हो गई हैं, तो एमबी बैच जो उसका तो दूसरा क्लास था ही, दूसरा स्लॉट ही नहीं था इसके बाद, तीसरा मतलब, और एमए बैच का जो स्वप्निल सर का स्लॉट था उसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक रिदम में आपको पहले एक पूरा डिवीजन बता देना चाह रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्टेड हिम। सो आर यू श्योर आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं डॉक्टर्स? No, sir. नहीं सर, मजा आ रहा है। परफेक्ट। थोड़ी देर खींचूंगा बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा, थोड़ी देर में खींचूंगा। तो अभी ये क्लियर हो गया अपने को, डिफरेंशिएशन और डिवीजन, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एक इंटरफेस हो गया अपना, G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। डेफिनेटली उसके बाद कौन सी फेज आएगी? कौन सी फेज आएगी बच्चों? M phase. M फेज। भाई G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, तो उसके बाद कौन सी फेज आने वाली है? M फेज। और यदि डॉक्टर्स, यदि M फेज में नहीं जाना है, माइटोटिक साइक्लिन ने मना कर दिया CM यानी माइटोटिक साइक्लिन, द सेकंड चेक पॉइंट, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। अब या तो भैया वो वहीं रुक जाए या वो आगे बढ़ जाए, किसमें? पूरे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो पहले मैंने एम फेज बताई और उसके बाद मैंने एक फेज बताई G0। तो पहले एम फेज को हम लिखेंगे, एम फेज को लिखेंगे, इसी में से देखकर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एम फेज, जो मैं बोलूंगा वही पॉइंट लिखना है। हेडिंग डालिए एम फेज। पॉइंट नंबर 1, फाइनल फेज ऑफ सेल साइकिल। फाइनल फेज ऑफ सेल साइकिल। नंबर 2, phase of actual division. Phase of actual division. Number 3, since cell organelles already duplicated, since cell organelles already duplicated during G2, therefore M phase is simply the separation of
or the division of duplicated components. Gayatri madam, noted? Yes, sir. Next point. This M phase consists of karyokinases, followed by cytokinases, Next point. After M phase, a cell has sorry, ऐसा लिखो, after M phase, newly synthesized cell has two choices. Newly synthesized cell has two choices. Either re-enter into fresh cycle, or exit through G0 phase. बच्चों, जो लिखा वो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हर चेक पॉइंट के पास उसको अपन ने चॉइस दे दिया, मतलब उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यदि उसके पास एनर्जी है तो वो एंटर करे अगली नई सेल साइकिल में, और एनर्जी नहीं है तो या तो वेट कर ले, नहीं तो बाहर निकल जाए. नोट G0 phase is known as quiescent stage, which is a stage of inactivation, of cell cycle, due to unavailability of energy. नीट का परमानेंट क्वेश्चन मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं क्योंकि याद रहेगा आपको वो कि सर ने हाईलाइट करके बताया था. क्या लिखा है? The cells remain G0 cells remain metabolically active. क्योंकि यही सवाल पूछते हैं, वो ऊपर का सेंटेंस लिखते हैं क्वेश्चन में कि G0 is a quiescent stage which is called as inactive stage. Then which of the following statement is true? और देते हैं cells remain metabolically inactive. No, cells remain metabolically active but do not grow or differentiate. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूं, आप फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे. इन G0, हाँ गायत्री बोलो. Sir, right now, like you told, it will stop the cell cycle if it doesn't have enough energy. But can it be there that it has energy,
but it has mitogen also, but like it is a cell of say neuron. So anyways, it's not going to divide. So even if we provide energy, Yes. it will not use it. Again, bhai, what I told you, Gayatri, earlier, bhai, at every checkpoint, they have two choices. Like suppose after M phase, they have two choices. Either they should re-enter into new cycle or they should enter into G0. या तो G0 में चले जाए, बट G0 में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अभी वो ग्रो नहीं कर रही है, डिफरेंशिएट भी नहीं कर रही. बट once if you ask me about the neuron, they will not at all re-enter into new cycle and they will exit through this G0 and differentiate. Gayatri, understood? Sir, actually my question was like different, sir. Boliye, what was your question? Sir, can the cell means it is completely on the cell's choice or can it be forced by external factors? It can be forced by external cycle, but the complete cell division is genetically controlled, madam. Otherwise, every cell will divide abnormally and may lead to tumor and cancer. So it is genetically controlled method. But yes, you can induce any cell to divide. That is the basic principle of cell culture in a petri dish, na? किसी artificial, आप bacterial culture कैसे करते? In a petri dish, you are trying to grow bacterial cell, Gayatri. In a laboratory, how a scientist will culture a bacterial cell? वो कैसे bacteria का culture बनाता होगा? By inducing some mitogens, na? Yes, sir. Agree? So as far as mitogens are concerned, yes, they induce any cell. That's why what I'm saying, the next line is, ki still in G0, the cell remain metabolically active, no problem. But they do not grow. They do not grow and differentiate because of unavailability of energy. But if they find that they have sufficient energy, they can re-enter into new cycle, they have enough reserve material, they can restart with the new cell cycle. But if they don't have enough energy, so how long they will wait? Better to exit from the cell like a neuron. Gayatri. Yes, sir. Thank you, sir. Understood? Yes, sir. Okay. So full stop लगा के लिखेंगे in G0 cells remain metabolically active. Cells remain metabolically active. But do not grow or differentiate. Do not grow or differentiate. Full stop. But if they exit, they can grow and differentiate. याद आया डायग्राम में लिखा था मैंने, they can grow and differentiate. So G0 से भी दो ऑप्शंस हैं भाई, या तो एनर्जी है तो आप रिसाइकल हो जाओ, नई सेल में एंटर कर दो, फिर से G1 में एंटर कर जाओ, और नहीं तो आप एग्जिट कर जाओ और फिर आपको जो करना है, ग्रोथ करना है, डिफरेंशिएट करना है, कर जाओ. आप डिवाइड नहीं कर सकते. हाँ, आपको रिसाइकल एंटर करना है, G1 में एंटर करना है तो फिर डिवाइड कीजिए. बट वंस यू एग्जिट, आप ग्रो कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, कोई फंक्शन कीजिए, बट यू कांट डिवाइड. अंडरस्टूड डॉक्टर्स? सर लेकिन आपने पहले लिखा था इन G0 cells remain metabolically active but do not grow or differentiate. हाँ ना, अभी भी वही बोल रहा हूं ना. अरे ओमकार, G0 में दो एरो दिख रहे हैं यहाँ G0 में, देखो. हाँ सर. ओमकार सिंपल सा, इसलिए तो वापस डायग्राम पे आया दोस्त, वहां भी गड़बड़ कर दी तुमने. चल देख अभी ये कौन सी फेज है? G0. भाई G0 को एनर्जी मिल गई तो लो, तुम फिर से री एंटर कर जाओ. किसमें? हाँ सर. G1 में. ओमकार समझा? हाँ सर. और यदि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है भैया,
तो तुम G0 क्या हो जाओ? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एग्जिट। अरे तुमको क्या करना है? एग्जिट। और जब एग्जिट तुम हो जाओ, बाहर निकल जाओ, तो तुम्हें जो करना है करो यार। ग्रोथ करना है, डिफरेंशिएट होना है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन हायर करना है, जो करना है कर लो। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू। भाई देखो, दो बेसिक कंसेप्ट पकड़ो, ऐसे समझते हैं अपन। तो इस साइकिल को फिर से मैं बताऊं, क्योंकि ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मैंने आपको बताया, इसको इधर कर दूं। एक मैंने आपको बताया चेक पॉइंट यहां पर, कौन सा चेक पॉइंट? CG1। दूसरा पॉइंट बताया मैंने यहां पर, सॉरी गलत बन गया वो, जस्ट मिनट, CM। यहां पर ये कौन सा पॉइंट? CM। अग्री? यस सर। ओंकार? भाई अब इस चेक पॉइंट ने बोला कि यार तुम्हारे पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए किस में चले जाओ? G0। ओंकार समझा? हाँ सर। अब तुम थोड़ी देर के लिए G0 में चल। भाई तुम मेरे पास आए, तुम बहुत थक गए थे, सुबह दिन भर से काम करके थक गए थे, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम थोड़ा रेस्ट करो। तुमने रेस्ट किया, तुमने 2 घंटे रेस्ट करने के बाद बोले नहीं सर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो लो भाई तुम एग्जिट कर जाओ। और एग्जिट करके फिर तुम्हें जो करना है, तुम्हें खेलना है, कूदना है, सोना है, डॉक्टर के पास जाना है, जो करना है करो। अब तुम फिर से लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन तुमने कहा कि सर 2 घंटे बाद मैं फ्रेश हो गया, लो भाई आ जाओ। अंडरस्टूड? यस सर। अंडरस्टूड डॉक्टर्स? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन जो 2 घंटे का रेस्ट मैंने तुमको बोला, जो 2 घंटे का रेस्ट मैंने तुमको बोला, उसमें तुम मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं थे। तुम मेटाबॉलिकली क्या थे? एक्टिव। दो उस समय आप डू नॉट ग्रो, आप रेस्टिंग कंडीशन में थे भाई, आप ग्रो नहीं कर रहे थे, आप डिफरेंशिएट नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं दिया था ना, क्योंकि अभी गुंजाइश थी कि आप अभी और फिर से नए साइकिल में एंटर कर सकते हो। लेकिन वंस यू एग्जिट लाइक ए न्यूरॉन, परमानेंट चला गया G0 में, वो अब वो कर ही नहीं रहा है, वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। परफेक्ट। ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, और मैं तो शर्तिया चैलेंज कर सकता हूं किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी बच्चे को, यदि वो रेजोनेंस का विद्यार्थी नहीं है, तो उसको ये पॉइंट पकड़ में नहीं आया होगा। यहाँ आगे की लाइन देखो क्या लिखा, बढ़िया लाइन लिखी हुई है। द सेल फंक्शन एज रिजर्व सेल्स व्हिच कैन जॉइन सेल साइकिल एनी टाइम। डिफरेंशिएशन फेज, मोस्ट ऑफ द सेल लीव द G1 फेज मिडवे, आधे में छोड़ देती हैं। दे ग्रो इन साइज, assume particular shape and come to a particular function. This phenomenon is called cell differentiation. वो आधे से वापस आ जाती क्योंकि उन्हें लग गया इसके आगे मैं नहीं जा सकता, लो भैया बाहर आ जाओ, एग्जिट कर जाओ। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये तो बात हुई दोस्तों इंटरफेस की, G1, S और G2। और M फेज में 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और मैंने उसके बाद एक और बता दिया कि यदि वो M फेज से आगे बढ़ रहे तो 2 चॉइस, परमानेंट तुम्हें एग्जिट करना है, तुम थक गए हो तो परमानेंट एग्जिट कर जाओ, जैसे कुछ बच्चे कर गए। अब यदि मैंने इनेबल कर दिया वेटिंग रूम, केवल 45 बच्चे बचे हैं, तो आई शुड इनेबल द वेटिंग रूम, क्योंकि ये थक गए हैं, ये परमानेंट एग्जिट कर गए, तो मैंने अब यहाँ इनेबल कर दिया वेटिंग रूम। अब ये मेरी मर्जी के बगैर अंदर नहीं आ पाएंगे, तो ये परमानेंट एग्जिट कर गए। अब ये परमानेंट एग्जिट कर गए तो ये फिर से क्लास अटेंड नहीं कर सकते, ये रिडिवाइड नहीं कर सकते, G1 S G2 में फिर से नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये कहते कि सर 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, फिर आप और आधा घंटा पढ़ा लीजिए। तो वो कौन सी फेज होती दोस्तों? G1। वो G0 में मेटाबॉलिकली एक्टिव थे, पानी पी रहे थे, कुछ नाश्ता खा रहे थे, कर रहे थे, बट वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होकर दूसरा काम करने नहीं लग गए थे।
और जब वो री एंटर किए तो मैंने अलाउ कर दिया। 15-20 मिनट पढ़े, उन्हें लगा कि नहीं इससे आगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो परमानेंट एग्जिट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। यस सर। Perfect. Excuse me, sir. Yes, excused. So only G0 and permanent G0 are two different things. Absolutely. G0 can happen anytime at any phase, but permanent G0 can only happen after the new cell has been created. Like there is a choice for the new cell. थोड़ा गड़बड़ कर दिया। G0 किसी भी जगह पर नहीं हो सकती दोस्त। G0 एक एम फेज के कंप्लीट होने के बाद ही आएगी। एम फेज हो जाएगा यानी साइटोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा G0 कि भैया नए तुम बने हो, क्या तुम तुरंत डिवाइड हो सकते हो क्या? यदि हाँ तो आगे बढ़ो, यदि ना तो यहां से एग्जिट कर जाओ। अदरवाइज वहां थोड़ी देर पड़े रहो, G0 में पड़े रहो। लगता है आपको कि यू कैन रिकलेक्ट द एनर्जी, री एनर्जाइज, देन एंटर इनटू G1। इफ नॉट देन यू कैन एग्जिट फ्रॉम द G। सेल से एग्जिट होने का एक ही रास्ता है और वो है G0। गायत्री, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। अब जैसे यहां पर बहुत अच्छा सवाल एक आया, बहुत ही बढ़िया सवाल, और मैं पूछूंगा क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो गई, मैं जरूर पूछूंगा। केवीपीवाई का परमानेंट क्वेश्चन 101% सवाल आया। मैंने आपसे कहा एक, आई एम गिविंग यू अ ग्लास ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर में every bacterial cell divides per minute, बैक्टीरियल सेल, हर बैक्टीरियल सेल क्या करती है, हर 1 मिनट में डबल हो जाती है। और डिवाइड पर मिनट, और आई शुड से डबल्स पर मिनट, नहीं डिवाइड पर मिनट, नॉट डबल पर मिनट, डिवाइड्स पर मिनट। हर एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाती है, हर 1 मिनट में डिवाइड हो जाती है। अब मैंने आपसे कहा कि यदि वो बैक्टीरिया ग्रोथ करते करते 30 मिनट में आधा भर जाता है, वो ग्लास हाफ फिल हो जाता है, तो वो ग्लास पूरा कितने मिनट में भर जाएगा? 60 मिनट, 60 minutes. 31 मिनट्स। अरे भाई क्यों 60 मिनट लगेंगे उसको? 31 मिनट्स। हर सेल डिवाइड हो रही है हर मिनट में, हर सेल डिवाइड हो रही है हर मिनट में, तो सारी सेल डिवाइड होंगी ना अगले मिनट में, और 31वें मिनट में ग्लास पूरा भर जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. और ये मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा था। अब बोलो, कोई बोला कुछ? सर ये मैथ्स का क्वेश्चन भी है ऐसा। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब मैं यहां पर आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि एक मैंने बैक्टीरियल सेल दी और एक मैंने यहां पर कुछ चोट लग गई थी तो हीलिंग चल रही थी, तो मैंने यहां की अपनी सेल दे दी, बैक्टीरियल सेल, और एक नितिन पाठक की सेल। दोस्तों यकीन मानिए ये बैक्टीरियल सेल ये G0 में जाएगी ही नहीं। इसने डिवाइड किया और पैदा हुई वाली सेल फिर डिवीजन के लिए तैयार, फिर डिवाइड किया, पैदा हुई, फिर डिवीजन के लिए तैयार, पैदा हुआ, फिर डिवीजन के लिए तैयार। जस्ट इमेजिन आपकी सेल, दोस्तों आपकी और मेरी सेल ऐसी नहीं जाती। आपकी और मेरी सेल एरिथमेटिक ग्रोथ करती, बताया था मैंने कल लास्ट लेक्चर में, एरिथमेटिक। Yes, sir. One cell divided +1 यानी एक से एक बनेगी, वो थोड़ा रुकेगी, वो अगली आगे बढ़ेगी, फिर एक रुकेगी, अगली आगे बढ़ेगी। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है दोस्त। वो तो नया सेल डिवाइड हुआ, फिर री एंटर इनटू सेल साइकिल, फिर री एंटर इनटू सेल साइकिल, फिर री एंटर। जब तक पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट है, जब तक पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट है या आपके बॉडी में ब्लड है, वो पैथोजन ग्रो करता जाएगा। कोरोना तेजी से बढ़ता जाएगा, वायरस, उसको ब्लड मिल रहा है, आपका ब्लड खत्म, वो भी खत्म। तो यहां ये बात ध्यान देने वाली बात है कि G0 फेज बहुत शॉर्ट होती है या इंटरफेस बहुत शॉर्ट होती है उनमें जिनमें फास्ट डिवीजन होता है। ये अभी लिख भी चुके हैं आज हम लोग। एम आई राइट अंकुर, अंजलि? यस सर। यस सर। लिखा? चलो
Yes, sir. अर्पित जाधव, गितेश, मुक्ति, आयुष। Yes, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. पलक संधान, पलक संधान, why you missed your classes, last few classes, Palak? Sir, actually, I went to other town. That's why. अरे पलक मैडम, एक चुली और दो चुली मत करो ऐसा। अदर टाउन, ये टाउन, वो टाउन, बी टाउन, कहीं मत जाओ। 2 साल के लिए सारे शहर जाना रोक दो बेटा। पलक। Yes, sir. ओके। शुभम रोथे, शुभम रोथे, अंडरस्टूड? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पार्ट बच्चों, 10 से 15 मिनट और, मुश्किल से 10 से 15 मिनट दूंगा मैं आपको। एक मुझे बस ओवरऑल पिक्चर बता देंगे जो से मुझे अगली क्लास में रिपीट ना करना पड़े। देखिए ओवरऑल मैं समझा दे रहा हूं ताकि अगली बार सिर्फ क्या होगा, मुझे आपको एक एक स्टेप लिखाते हुए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब मैंने आपसे कहा वी आर डीलिंग विथ विच फेज? M phase. M phase. M phase. And how many phases? 2. How many steps? 2. Karyokinasis. Karyokinasis, cytokinesis. साइटोकाइनेसिस। एक क्वेश्चन आया कहीं से, कुछ किसने क्या लिखा था चैट बॉक्स में? प्लीज आस्क। प्लीज आस्क, आई डिडंट सी। Sir, हाँ sir, बोलो। do the antibodies make the pathogen enter the G0 phase? Who asked? Sir, Shreyas Patel. Repeat your question, Shreyas. Sir, do the antibodies which we take makes the pathogen enter the G0 phase? नहीं, सवाल ही नहीं समझा दे रहा। Means make एंटीबॉडी it non-functional. नहीं समझा सवाल। एंटीबॉडीज क्या? Sir, do the antibodies make the pathogens to enter the G0 phase? नहीं Means नहीं not to grow and differentiate. नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, तुम कितनी सारी चीजें कोरिलेट कर लेते हो एकदम से। एंटीबॉडीज पैथोजन को किसी भी प्रकार से G0 में जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करती। आपके द्वारा लिया जाने वाला ड्रग एंटीबॉडीज को किल करती है सीधे सीधे, यार मार देती है उसको G0 में डालने के लिए क्यों भेजेंगी? वेट करवाएगी कि तू रुक वहां पर, तेरा फिर मन करे तो फिर चले आना। श्रेयस भाई Okay. वो क्या करेगा? उसको परमानेंटली किल करेगा ना। हाँ, आपके द्वारा लिया गया ड्रग या दवाई उसको किसमें एंटर करवा सकती है? उसके पूरे सिस्टम को रोक सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकती है, मशीनरी को रोक सकती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। मुग्धा अंडरस्टूड? Yes, sir. वैष्णवी, विधि, तन्मय, ईशान? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is prophase, this is metaphase, this is anaphase, and telophase. Followed by what? Cytokinesis. साइटोकाइनेसिस। अब एक पूरे स्ट्रक्चर में, एक ही पूरे सर्कल में, सिर्फ एक सर्कल में मैं पूरा बताना चाहूंगा, या ज्यादा 2 सर्कल। ये मैंने बनाया बनाई सेल का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव? 23 pairs. 23 pairs. Instead of saying 46, call it pronounce it as a 23 pairs, because chromosomes are always found in Pairs. Groups of 2. So these are 23 pairs. Since this phase which enters into M phase already completed G1, S and G2. Am I right? Yes, sir. Yes, And sir. after that only it enters into what? M phase. M phase. That means बच्चों
बच्चों ऑर्गेनल्स बढ़ चुके हैं, डीएनए डबल हो चुका है, उसका भी ग्रोथ हो चुका है, सब कुछ हो गया है। सो क्रोमोसोम्स एम फेज की पहली फेज प्रोफेज, आपको नहीं लगता इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स? अग्री? Yes, sir. Yes, sir. भाई Yes, हो ही sir. का ना, ये सारा कंटेंट डबल हो गया तो Yes, थिकनिंग तो sir. होगी। तो दैट थिकनिंग इज व्हाट? ड्यू टू क्रोमोसोम। ये ग्रोथ हो चुकी है, डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, और थिकनिंग होगी तो इसे क्या करना पड़ेगा अपने आप को? Condense. कंडेंस। और आपको नहीं लगता ये मेम्ब्रेन रप्चर होने लगेगी? Yes, sir. यस। Yes, sir. सो व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन Disappears. और जब ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ चुका होगा, तो आपको नहीं लगता कुछ ऑर्गेनेल भी डिसअपियर्स हो जाएंगे? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, जी, आप इतना कंडेंसेशन करा दिए, दैट मीन्स, मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि अगले क्लास के पहले आप पढ़ के रखोगे किस तरीके से हम जा रहे हैं, या किस तरीके से सर ने बताया। सर ने ये बताया कि भाई एम फेज में आने के पहले G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया। अब इतनी ग्रोथ हो चुकी यार उसकी कि न्यूक्लियस में तो बैठ ही नहीं रहा है, अकोमोडेट ही नहीं हो रहा है, तो वो डिसअपियर होने लगा। फिर भी उसको कंडेंस होना पड़ा क्योंकि उसकी थिकनिंग हो चुकी थी और इतना बढ़ चुका था कि सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर होने लगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब वो इतना बढ़ गया कि किसी न्यूक्लियस को उसने रप्चर कर दिया मेम्ब्रेन को और खुद इक्वेटर प्लेट पर आ गया। खुद इक्वेटर प्लेट पर आ गया। इधर पे एक सेंट्रियोल था और इधर पे एक सेंट्रियोल था, और ये सेंट्रियोल जुड़ गया काइनेटो को। मैडम ने पढ़ाया होगा। Yes, sir. अंडरस्टूड? मतलब इस तरीके से पढ़िएगा, मैं आगे और लिखवाऊंगा आपको, इस तरीके से पढ़िएगा। जब इक्वेटर प्लेट पर आ गया भाई, तो इक्वेटर प्लेट पर आने वाली इक्वेटर पर आ गया तो कौन सी फेज? Metaphase. Metaphase. अब ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है। जब इधर से खींचोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग स्ट्रक्चर बन के आएगा ना। कैसे? ये जो स्ट्रक्चर था ये इंग्लिश अल्फाबेट उल्टा वी बनेगा, या कभी ये सीधा वी बनेगा, या कोई छोटी आर्म हुई तो ऐसा बनेगा, कोई बड़ी आर्म हुई तो ऐसा बनेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ना फेज जब डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट दिखने लगे तो कौन सी फेज? Anaphase. 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 कभी वो एल, कभी वो वी, कभी इन्वर्टेड वी, कभी राइट, कभी बहुत छोटा रहा तो एक, भाई ये 2 क्रोमोसोम थे, कभी बहुत छोटी आर्म रही एक और एक बड़ी आर्म रही तो जे भी बन गया, ये जे। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखने लगते हैं, वो एनाफेज। पढ़िएगा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। एंड फाइनली व्हाट? द टीलोफेज। जब टर्मिनल पार्ट पर आ जाए, इसके बीच में फरो बनने लगे और सेल कुछ इस तरह से हो जाए। सो दिस इज व्हाट? टीलोफेज। और फाइनली यहां से डिवाइड। अंडरस्टूड? डॉक्टर, Yes, sir. बेसिक कंसेप्ट समझ में आया Yes, आपको? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. अगली Yes, क्लास sir. में, अभी आई एम लिविंग द क्लास, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां से? प्रोफेज। हम लोग प्रोफेज के कैरेक्टर लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। मेटाफेज के कैरेक्टर लिखेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। एनाफेज कैरेक्टर डायग्राम, टीलोफेज कैरेक्टर डायग्राम। इन दिस वे वी विल मूव अहेड। अग्री डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Organelles. Excuse me, sir. Yes, excused. The organelles also disappear in the prophase. Yes, कुछ ऑर्गेनल्स को डिसअपियर होना पड़ेगा, कुछ ऑर्गेनल्स को डिसअपियर होना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना इसका साइज एक्सपांड हो चुका, डबल हो गया ना डीएनए कंटेंट। राजर? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, आई एम गोइंग टू लीव द सेशन।
I hope there is no doubt left in today's session. Any doubt? No, sir. All clear. No No, doubt, sir. So MA batch, there is no chemistry class, and MB batch, there is already no class. No class is scheduled, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All the best. Sir. See, yes, excused. Sir, please upload the lectures. Yes, no problem. No problem, Prasanna. I'll upload. Don't worry. Okay? Thank you, sir. All the best. Bye, sir. Thank Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. All the best. Bye, Take care. sir. Today's Bye, session sir. was Thank you, good, sir. Okay, Yes, take care. sir.